اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ الحکمہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام ایک سالہ تخصص فی الدعوہ والافتاء کورس کا بنیادی تعارف ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نیچے اس کو دیکھیں گے، یہ کورس علوم شریعہ کی معاشرتی تطبیق اور عصری علوم کا تجزیاتی مطالعہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ دونوں لفظ کو بچے سمجھنا ہے، اسی سے آپ کو عالم بھی ساتھ ساتھ سمجھاتا جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو قرآن و سنت کی تفہیم اور قرآن و سنت کے علوم کی اور معاون علوم کی جو تفہیم ہے وہ انٹرنیشنل لیول کی آفاقی اور کائناتی قسم کی آپ کو تفہیم حاصل ہو، ہر لفظ کی کائناتی اور آفاقی تفہیم حاصل ہو۔ اس سے آپ یوں سمجھے کہ علم دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہے تحمل اور ایک ہے ادا۔ تحمل اور ساتھ کیا ہے؟ ادا۔ آپ کا تحمل کس لیول کا ہے اور آپ کا ادا کس لیول کا ہے، بات سمجھ رہے کہ تحمل کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تفہیم۔ آپ کی تفہیم، مثلا آپ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ کی تفہیم آپ کی کائناتی اور آفاقی کیا ہے؟ وہ تو جس وقت ہم پڑھیں گے اس وقت دیکھیں گے کہ اس کی تفہیم معاشرتی آفاقی قسم کی۔ بسم اللہ جب پڑھتے ہیں تو بسم اللہ بچے آپ کے سامنے اس طرح کھل کے آئے کہ پوری کائنات اتنی نہ کھلی ہو جتنی کہ آپ کے اوپر بسم اللہ کھلی ہو۔ اس لیے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے اوپر لفظ اللہ اکبر کھلا تھا تو انہوں نے اس اللہ اکبر کی تعبیر میں یہ جملہ بولا کہ اللہ اکبر خیر من الدنیا وما فیہا۔ آپ اندازہ کریں، اللہ اکبر خیر من الدنیا وما فیہا، یعنی ہمارے سے کوئی پوچھے کہ دین کیا؟ دین تو بہت دور کی بات، اس میں تو پوری کائناتوں کی کائناتیں، خالی اللہ اکبر کہنا خیر من الدنیا ما فیہا۔ اب ان کے اوپر اللہ اکبر کائنات آفاق سے زیادہ اتنا کھلا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے، اور خیرون اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل من مقابلے کا ہے۔ من کیا ہے؟ مقابلے کا ہے۔ دنیا کے اوپر الف لام استغراقی ہے، کلی ہے، من الدنیا وما فیہا، اور ما عمومیہ ہے۔ ما عمومیہ موصولہ ہے جو مطلق ادھر جا کے اصول فقہ میں مطلق بنے گا، اور ادھر کیا ہے؟ وہ نحو میں موصولہ کی شکل میں، یعنی ساری دنیا میں جو کچھ ہے، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور فیہا کے اندر کیا ہے بھلا؟ فیہا ظرف ہے، اور ظرف میں گہرائی ہے۔ ایک تو نا ظرف مکان ظرف زمان والا، فیہا یعنی دنیا ہے، اور دنیا کی بنیادوں اور جڑوں میں جو چیز چھپی ہوئی ہے نا اس کا بھی میں کہہ رہا ہوں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اوپر جو کائنات کے اوپر انسان اور کائنات کے اوپر جو خزانے ہیں وہ نہیں، اس دنیا کی جو جڑ اور بیس کے اندر کوئی سونا ہیرا جوہر وہ چھپے ہوئے، میں اس کے مقابلے میں بھی کہتا ہوں، اور دنیا کے جو اوپر ہے اس کے مقابلے میں بھی کہتا ہوں کیا؟ اللہ اکبر خیر من الدنیا وما فیہا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو جس کے ہاں خالی اللہ اکبر اتنا بڑا ہے اس کے ہاں پورا دین، پوری شریعت کیا ہوگی بچے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، وہ بیت اللہ کا، سالم بن عبداللہ بیت اللہ کا کیا کر رہے ہیں؟ طواف کر رہے ہیں۔ طواف کے دوران وقت کے بادشاہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ بہت نیک آدمی ہے، تو ساتھ ہی بیت اللہ کے سامنے کہا کہ حضرت آپ کی جو خواہش اور جو ضرورت ہے میں پوری کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ میں سالم بن عبداللہ کی خدمت کروں، اور سالم بن عبداللہ کی خدمت سے اپنے آپ کو اور اپنے رب کو کیا ہے؟ خوش کر سکوں۔ تو سالم بن عبداللہ نے ویسے اشارہ کر کے کہا کہ
بیت اللہ کے سامنے تیرے سے مانگتا ہوا اچھا نہیں لگتا. اسے بات سمجھ آئی. پھر دوسری دفعہ پھر آخر کار پتہ چلا کہ جہاں سے سالم بن عبداللہ نے بیت اللہ کا طواف کر کے جس دروازے سے باہر جانا اس دروازے پہ آ کے انہوں نے انتظار کیا. وہاں جا کے پوچھا بتایا کہ سالم ادھر تو اللہ کا حیا آتا تھا, ادھر آپ بتاؤ کہ یہاں جو آپ چاہتے ہو, میں اللہ کے لیے آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. آپ کو میں بتا رہا ہوں بچے, جس کے دل میں دین آ جائے نا, جس کے دل میں دین آ جائے اس پہ اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے. صحابہ کے ہاتھوں میں دنیا تھی لیکن صحابہ کے دلوں میں دین ہی تھا. بات سمجھ رہے, یہ جملے یاد رکھنے, دل میں دین ہی ہونا چاہیے, ہاتھوں میں دنیا ہونی چاہیے جتنی مرضی اکٹھی ہو. صحابہ کے ہاتھوں میں دنیا تھی, صحابہ کے دلوں میں دنیا نہیں تھی. اصرار کے باوجود پتہ ہے کیا کہا کہ تیرے سے مانگو تو کیا مانگو, تیرے سے مانگو تو کیا مانگو, آخرت تو دے نہیں سکتا اور دنیا تو میں اس سے نہیں مانگ کے آیا جو دنیا دے سکتا ہے. آخرت تو دے نہیں سکتا اور دنیا تو میں اس سے نہیں مانگ کے آیا جو دنیا, لہذا حضرت تیرے پاس دینے والی چیز ہی کوئی نہیں ہے. آپ اندازہ بات کر رہے, سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہاں تو چھوٹا سا کوئی 50,000 لاکھ روپے دے دے تو اس کے پیچھے اس لیے استاد گرامی فضیلت الشیخ حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ وہ پتہ ہی فرمایا کرتے تھے, وہ فرماتے تھے کہ جو عالم لوگوں سے مستغنی نہیں ہوتا اس کا علم کی عین اور علم کے سے کوئی بھی واسطہ راستہ نہیں ہے. جس عالم کا علم اس سے دنیا سے مستغنی نہیں کرتا, اس کا علم سے واسطہ راستہ ہی نہیں ہے, تو دنیا سے مستغنی ہو جاؤ. تو بات کیا کر رہے ہیں, تفہیم, تحمل بچے اس لیول کا ہو کہ آپ کو سمجھ آئے کہ جو تیرے پاس میرے پاس ہے نا, وہ بچے کائناتوں کا سب سے بڑا خزانہ ہے. اس لیے حدیث آپ دیکھیں, اب اسی خیر کو لفظ لینا ہے, خیر من الدنیا والآخرۃ خیر, والآخرۃ خیر نکرہ ہے, اور آخرت ادھر الف لام استغراق کے طور پہ, اور آخرہ خیر کیا ہے, نکرے کے ساری آخرت, یا یہ ترجمہ نہیں, اس کو ترجمے کو اور کھولے, آخرت کا ہر لمحہ, ایک ہے آخرہ, ایک ہے الآخرہ اور ایک ہے للآخرہ, جو آخر جا کے کہیں گے سورۃ ضحیٰ میں جائیں گے تو وہاں کیا الآخرہ, یہاں الآخرہ, آخرہ الآخرہ للآخرہ. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ للآخرہ کا مطلب کیا ہے کہ وہاں تاکید کے طور پہ اور زیادہ دور, کہ اگر ادھر سے موت ہے اور موت سانس سے شروع ہوئی, سانس کے رکنے سے, دو لفظی زندگی کا اور موت کا جملہ سنیں. زندگی نام ہے سانسوں کا, زندگی نام ہے سانسوں کا, چلے تو زندگی رک جائے تو موت. زندگی نام ہے سانسوں کا, چلے تو زندگی رک جائے تو موت. تو اب بس اتنی آپ اندازہ کر لیں, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ, اور آگے بھی یہاں خیرٌ اور وہاں لفظ کیا, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, وہاں بھی حد ہے. اب دیکھیں دوسری جگہ, دو جگہ قرآن کی یہ آیت پیش, حدیث میں دیکھیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلم. تعلم اور علامہ کے درمیان میں آپ کو فرق سمجھا ہے کہ جو شریعت کو جز کر کے گھول کے پلا دیتا ہے, ایک پڑھا دیتا ہے اور ایک پلا دیتا ہے. بات سمجھو, ایک شریعت پڑھا دیتا ہے اور ایک شریعت پلا. نظریہ پڑھایا نہیں جاتا بچے, نظریہ پلایا جاتا ہے. قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ, بچڑے کی محبت کا یا ان کے معبود ہونے کا نظریہ انہیں پلا دیا گیا. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟
اور جب پلا دی جاتی نا چیز وہ ایک جگہ ساکن کوئی جز نہیں اس طرح بنتا, وہ پورے جسم میں پھیل جاتی ہے. پانی جو نا وہ بڑا باریکی سے وہ سارے جسم کو کور کرتا ہے. تو یہاں بھی آؤ خیرکم من تعلم, استاد حفظ کا ہو یا ناظرے کا ہو, اس کا سب سے پہلا کام اگر وہ 2 سال میں حفظ کروا دے, منزل پکی شعبہ اتقان میں جانے سے کی ضرورت ہی نہ ہو, پکی منزل کے ساتھ اگر وہ بچے کو 2 سال میں قرآن کی محبت پلاتا نہیں ہے نا بچے, وہ استاد نہیں ہے, وہ معلم نہیں ہے. جو معلم کا ہوتا ہے علم کی محبت بچوں کو پلا دیتا ہے. اب پھر کیا ہوتا ہے, ہمارے بچے 8 سال پڑھنے کے بعد کبھی ہنر تلاش کر رہے ہیں, کبھی فن تلاش کر رہے ہیں, کبھی لائف سکل تلاش کر رہے ہیں. وہ بچے تجھے پہلے دن جس وقت تیری ماں نے اپنی گود خالی کر کے, تجھے تیری ماں نے اپنا گھر خالی کر کے, آپ کا بستر خالی کر کے بھیجا تھا, اس نے تجھے یہ دنیا کا ڈیزائنر اور دنیا کا فنکار بنانے نہیں بھیجا تھا. اس نے تو تیرے لیے قربانیاں دی تھی اور اپنی قربانیاں دی تھی کہ یہ اللہ کے دین کا کیا بنے گا, وارث بنے. تو جب چھوٹا تھا بڑا تھا, جب تو بڑا ہوا چھوٹا ہو گیا ہے. جب تو چھوٹا تھا تب کیا تھا, بڑا تھا, تو دین کرتا تھا. اور جب تو تھوڑا سا سود بدھ میں آیا, بڑا ہوا ہے, تو بڑا ہو کے کیا ہو گیا ہے, چھوٹا ہو گیا. اب تو دیکھتا ہے باہر کی نوکریاں, باہر کی نوکریاں دیکھ رہا ہے, اور تو باہر کی ملازمتیں دیکھتا ہے, باہر کے سٹیٹس دیکھ رہا ہے, سٹیج دیکھ رہا ہے. تو اپنی اصل کے اوپر باقی رہے. بات سمجھ آ رہی, اصل کے اوپر باقی رہے گا تو اللہ کی رحمت رہے. بچے تھوڑی دیر آزمائش ہوتی ہے, زیادہ دیر آزمائش نہیں ہوتی. وہ ایک بچہ بھی ہمارا تھا, تو وہ میں نے اس سے کہا, میں نے کیا کر رہا, میں فلاں ڈیزائننگ. میں نے کہا بچے بات سن, کسی دیندار اچھے اداروں میں, بڑے اداروں میں بیٹھ جا, وہاں 2 سال یا 1 سال برداشت کر, اور ادھر تو 1 سال لائنوں میں لگ کے کام کرے گا, 2 سال کے بعد ادارے تیری لائنوں میں کھڑے ہوں گے. لیکن وہاں تو 2 سال بچے اچھی جاب میں, تنخواہ تھوڑی سی اچھی ہے, حتیٰ کہ بعض دفعہ بعض شاگردوں کی اساتذہ سے اچھی تنخواہ ہے. شیخ عبدالعزیز علوی صاحب جب فوت ہوئے, ان کی تنخواہ کتنی تھی آپ کے سامنے ہے, بات سمجھ. لیکن ان کی نہ کوئی, آپ حافظ مسعود عالم صاحب حافظ اللہ, ان کا اپنا ذاتی گھر بھی نہیں ہے, اپنا ذاتی. آپ اندازہ کریں دنیا جہان کے تمام لوگ ان کو اپنا کیا ہے, رہبر و رہنما سمجھتے ہیں, لیکن یہ کہ گھر نہیں. یا اسی طرح باقی چیزیں جو سہولیات زندگی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو ہماری تو اس سفر کا جو پہلا مسافر ہے وہ بھی اللہ کے فضل کرم سے لا سلک مالی حاضرہ پہ کھڑا ہے. تو عرض کر رہا ہوں کہ تفہیم اس طرح کی کرنی ہے کہ بچے آپ کو نا, ایک لفظ آپ کے اندر ہو نا, تو وہ ایک لفظ پوری کائنات سے زیادہ بہتر ہو. اور جب پوری شریعت ہو تو بچے آپ کے مقابلے میں ہے ہی کوئی نہیں. بات سمجھ رہے کہ نہیں, ایک جملہ ہونا. اور حتیٰ کہ میں نے آپ کو بتایا ہوگا, ابو حیان منصور 4 صدی کے, ان سے کسی نے پوچھا کہ ما فعل اللہ بیک, اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے, فوت ہوئے تو اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے. تو انہوں نے جملہ بولا, کیا, غفر اللہ لی بتعلیم الصبیان الفاتحہ, اللہ نے مجھے صرف فاتحہ پڑھانے سے ہی معاف کر دیا, باقی تو پورا قرآن درجات کی بلندی کا کیا بنا ہے, سبب بنا ہے. تو آپ اندازہ کریں کیسا ہے, یہ تو بہت دور کی بات. حتیٰ کہ امام سیبویہ, ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کو جس وقت خواب میں کسی نے دیکھا کہ اللہ نے تجھے کیا, تیرے ساتھ معاملہ کیا کیا, کہا کہ ایک جملے سے بخشا گیا ہوں. وہ کون سا جملہ تھا, میں نے کہا تھا کہ لفظ اللہ عارف المعارف ہے, دنیا کا سب سے بڑا معرفہ, دنیا کا سب سے بڑا معرفہ وہ کون سا ہے, لفظ اللہ ہے. مجھے اللہ نے اسی لفظ سے کیا کر دیا ہے, معاف کر دیا ہے. تو بچے پورا قرآن ستہ ساری, اور اس کے باوجود چھوٹے محسوس ہونا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تفہیم چھوٹی ہے جو آپ کو چھوٹا بنا رہی ہے. وگرنہ آپ کے سامنے اب ساری مثالیں, بڑے سے بڑی مثالیں اور چھوٹی سے چھوٹی مثالیں, تو تفہیم ایک تو کرنی ہے پوری قرآن سنت کی نا, تفہیم پراپر کرنی. حتیٰ کہ الحمدللہ آئے نا تو بچے مثلا
आपने फजर पढ़ी, मैंने फजर पढ़ी, आपने रात गुजारी, मैंने रात गुजारी। इस वक्त आप अंदाज़ा करें कि फजर की नमाज तो सारे मुल्कों में होगी। चले जुमा देख लो, जुमा सारे मुल्कों में हो गया है, जिनका 8 घंटे का 10 घंटे का फर्क। सवाल मैं आपको सिर्फ अहदाफ दे रहा हूँ बच्चे, मैं आपको उस मंजिल पे ला तो नहीं सकता, लेकिन जुमलों पे मैं आपको उन वो अरस्तु अफलातून सुकरात बुकरात वगैरह ये लोग कहा करते थे कि हम अगरचे आपको अपनी तालीम से बदल तो नहीं सकते, लेकिन एक काम ज़रूर कर देंगे कि आपके जहनों में वो सवालात खड़े कर देंगे कि जिन सवालात से आपको ये फिक्र पैदा होगी कि ये काम बरकैफ करने वाला है, ये काम क्या है, बरकैफ करने वाला है। तो मसलन आप कभी ज़िंदगी में इस तरह की भी नमाज पढ़ें या इस तरह का भी मुकाबला लाएंगे, मुकाबला इस क्लास से मुकाबले में आप निकल जाओ, ये बहुत छोटी क्लासें हैं, इदारे के मुकाबले में निकल जाओ, ये बहुत छोटे मुकाबले हैं, क्योंकि आप कुरान और सुन्नत के तालिब इल्म हो, आलिम हो, तो कुरान और सुन्नत का तालिब इल्म बहुत बड़ी लेवल पे सोचता और बड़े लेवल पे। मैंने आपको जुमले देने हैं, आपको उन जुमलों से अल्लाह ने मंजिल आपको देनी है, आपको सफ़र आपको अल्लाह ने देने हैं। मसलन आपने बच्चे कभी ज़िंदगी में इस तरह के मुकाबले में कभी उतरे हो, मैंने फजर की नमाज या जुमेर की नमाज या असर की नमाज, कोई भी नमाज, एक नमाज ऐसी पढ़नी है कि मेरी पूरी दुनिया लेवल पे, चाहे कोई बैतुल्लाह का गलाफ पकड़ के, लगाव पकड़ के मस्जिद नबवी के रोज़ा रसूल पे जाके बैठा हो, कोशिश करनी कि मेरी नमाज म्यार में इतनी ऊपर चली जाए, एक नमाज चाहे ज़िंदगी में, कि अल्लाह कहे कि आज की फजर में पूरी दुनिया में सबसे पहली पोजीशन पे नमाज पढ़ने वाला नमाजी ये फलां है, उसमें बच्चे सारा जहान आ जाएगा। ये तो है पूरे निसाब और पूरे पेपर, पूरी क्लास से पहली पोजीशन। अगर फर्द करो इसमें नहीं आते, चलो मुकाबला करने को हिस्सा तो लो ना, हर दफ़ा हार जाए कोई बात नहीं, कम से कम उससे बड़े लेवल पे आप मुकाबले में उतरे तो सही ना, कभी मुकाबले में उतरे ही ना तो फ़ायदा। चलो इस पे छोड़ो, जैसे होता है ना सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, सब्जेक्ट गोल्ड मेडलिस्ट, क्या लफ्ज़ बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट गोल्ड मेडलिस्ट, एक सब्जेक्ट से पूरे पाकिस्तान को क्रॉस कर गया कि इस सब्जेक्ट में गोल्ड मेडलिस्ट फला बंदा आया है। मसलन आप कोई रुकू ऐसा कर दें, आप कोई क़याम ऐसा कर दें, आप कोई सजदा ऐसा कर दें कि सजदा आपका पूरी दुनिया में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पोजीशन में आ रहा हो, और ये दर्द दिल की बात है बच्चे, ये तड़प और दर्द की बात है। और इसका मतलब ये नहीं है कि लंबा सजदा करने से आप घंटे पड़े ना। बाद दफ़ा होता है कि बच्चे, पता है क्या होता है कि बाद लोग तेज स्पीड से भी जाते हैं ना तो गाड़ी का हादसा नहीं होने देते, हुजूम में भी होते हैं तो गाड़ी का हादसा, रश में भी होते हैं तो गाड़ी का हादसा, छोटे रोडों में भी होते हैं तो गाड़ी का हादसा, कच्चे रोडों में भी होते हैं तो गाड़ी का हादसा नहीं होने, और बाद वो भी हैं जो मोटरवे साफ रोड पे भी गाड़ी इधर मार देते हैं। मतलब क्या, लंबे सजदे भी अच्छी बात है, क़याम भी अच्छी बात है, लेकिन बस औक़ात आपको पता हो कि मैंने एक दफ़ा तस्बीह पढ़नी है सुभान रब्बियल आला, लेकिन ऐसी चमकदार पढ़े कि ऐसी मज़ेदार, ऐसी लज्जत से लजीज नाम अल्लाह का ले कि आपको दिल के चाह और दिल के अरमान चढ़े हुए हो, दिल के अंदर बहार आ जाए। आप देखें, वाहिद दुआ है जो जिस दुआ में अल्लाह ताला के अस्मा की तमाम सूरतों का वास्ता दिया गया है, कोई ऐसी दुआ मुझे पूरी शरीयत में ऐसी नज़र नहीं आई जो इस तरह की अल्लाह मैंने आबदू वबनु आबदी वबनु आमाती, आगे नासियाती, नासियाती भी, इसको भी पूरी तफसील में समझ, मेरी पिशानी की हर जुज़ी और मेरी पिशानी के अंदर आने वाला और रुका हुआ हर लफ्ज़ बियादिक तेरे हाथ में है, मेरी पिशानी मेरी है ही नहीं,
मेरी पेशानी मेरी है नहीं। अब इसकी नासियाती, ये मुदाफिल है ना, मुदाफिल है। और आपको ये भी पता है कि जिस वक्त, चलें इस कहते छोड़े, नासियाती ब्यादी माद, आगे क्या है, मादिन फिया हुक्म। आप अंदाजा करें कि तरकीबें कैसी हैं। मादिन फिया, फिया यानी या अल्लाह मैं ऊपर ऊपर से नहीं कह रहा, अंदर से कह रहा हूं, और ऊपर ऊपर तेरा हुक्म नहीं चलाने वाला, अंदर से मेरे खून की रगों में भी तेरा हर हुक्म कायम है। हुक्म जिस वक्त इसम की इदाफत ज़मीर की तरफ हो ना बच्चे, इसम की इदाफत किसकी तरफ हो, ज़मीर की तरफ हो, तो उसका जोद मुराद नहीं होता, बल्कि उसका क्या होता है, जोद मुराद नहीं होता, बल्कि उसका क्या मुराद होता है, कुल। तो हमने तरकीबें भी ना इस तरह की समझनी कि उसमें तफक्को फिद्दीन हासिल हो, ना कि इराब हासिल हो। इराब हासिल होता रहेगा। 3 किस्म की ग्रामर होती, नाहवुल इराब, नाहवुल दलाला और नाहवुल उसलूब। हमारे लोग ज़्यादातर नाहवुल इराब के होते हैं। नाहवुल इराब ग्रामर में 3 शक्लें हैं, नाहवुल इराब, नाहवुल दलाला और नाहवुल क्या है, उसलूब। तो ये तीनों को सामने रखें। तो आगे क्या लफ्ज़ बोला था, मादिन फी हुक्म आदिल फिया कदा। आगे क्या है, अस्आलू का बिकुल्ली इस्मिन हुआ लका सम्मैता बिही नफ्सक। आगे औ अल्लमतहु अहदम मिन खल्किक, वो जो नाम तूने अपने नफ्स में, अपनी दात में छुपाए हुए हैं, वो जो नाम तूने अपनी मखलूक में से किसी फरिश्ते जिन इंसान को सिखाए हुए हैं, वो नाम औ अनदल तौफी किताबिक, जो तूने अपनी किताब में क्या किए हैं। अब इसता असर तभी फील मिल गई बिंदा कंतज अलल कुरान। असल लफ्ज ये है, इतने वास्ते दे के एक लफ्ज कहा है। जुमला क्या बोला पहला, कि बंदा, अल्लाह कहता है बंदे तू मुझे इतने नामों से और इतने वास्तों से पुकारा, तेरी तलब क्या है, तू चाहता क्या है। कहा क्या है कि या अल्लाह ताज आला, ताज आला कौन सी गर्दान है, मुदारे। मुदारे में क्या होता है, दवाम। मुदारे में क्या होता है, इस्तिमरार। कि तू बना दे सारे कुरान को और बनाता ही रहे, एक लम्हा भी ना रुके, एक लम्हा और मिनट भी ऐसा ना हो कि जिस लम्हे में मैं तो हूं लेकिन कुरान मेरे लिए बहार, मेरे दिल की बहार ना हो। या अल्लाह मेरे तू सारे कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे, तो सारी शरीयत पढ़ के भी दिल की बहार ना बने। वाहिद आलिम आदमी है जो बार बार अहले हदीस खुसूसन काला काला रसूलुल्लाह, काला काला रसूलुल्लाह, काला काला रसूलुल्लाह, काला काला रसूलुल्लाह, काला फिर रसूल मुदाफ अल्लाह मुदाफ ला मुदाफ मुदाफ मिल के फाइल, तो रसूलुल्लाह 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 पढ़ते हैं ना, तिरमिज़ी में, बुखारी में, मुस्लिम में, छोटी किताब। सवाल यह है बच्चे, ये बार बार तरकीब करके 2 लफ्ज़ रसूलुल्लाह, इन दोनों की अगर आपने पहली क्लास से 8वीं क्लास तक दोनों लफ्ज़ों को ज़बान पे लेके आए हैं लेकिन अभी तक दिल में नहीं उतरे, और दोनों लफ्ज़ मुकाबलतन मोहब्बत में ऐसे नहीं आए कि जहाँ अल्लाह रसूल की बात है वहाँ सूरत, कोई माल, कोई दौलत, कोई शोहरत, कोई मईशत, कोई मुआशरत, कोई सियासत, कोई इस तरह की चीज़ नहीं आए। अल्लाह रसूल की मोहब्बत बहुत कम लोगों को मिलती है। जुमला बोलता हूँ, इसे याद रखना। वो क्या है, आपको अल्लाह के घर मस्जिद में दाखला मिल जाएगा, आपको अल्लाह की नमाज में दाखला मिल जाएगा, आपको अल्लाह के दीन में दाखला मिल जाएगा, आपको अल्लाह की शरीयत में दाखला मिल जाएगा। बहुत कम लोग हैं जिसको अल्लाह की मोहब्बत की यूनिवर्सिटी में दाखला मिले। अल्लाह ताला की मोहब्बत की यूनिवर्सिटी में हर बंदे को दाखला नहीं मिलता, बहुत का। हत्ता कि आलिम जो है ना, वो भी ये दुआ साथ साथ वो करे, वो माबूद तो सब का है। क्या जुमला बोल रहा हूं, वो माबूद तो सब का है लेकिन महबूब किसी किसी का है।
बात समझ रहे? वो माबूद तो सबका है लेकिन महबूब किसी किसी का है, हर बंदे का वो महबूब नहीं है। वो कैसे पता चलेगा? आप नमाज ज़ोहर के लिए मस्जिद में आ रहे हो तो आपकी आंखें ठंडी हो रही हो, मैं अपने महबूब को मिलने जा रहा हूँ, आपको इंतज़ार हो, आपको एक एक लम्हे का इंतज़ार हो, अभी यार वक्त नहीं आ रहा, अभी नहीं वक्त आ रहा, और जी भर के मस्जिद में बैठे, फिर जी लगा के मस्जिद में बैठे, जी भर के नमाज पढ़े, ऐसी भरपूर मीटिंग करे कि लग पता जाए आज तो भाई लीडर ने मजा आ गया है। तो जैसे यार तेरा मीर मेरा मीर लम्हा साहब कदम बढ़ाओ, वो ये सारा कुछ है, ये वक्ती तौर पे जो चलता है, बात समझ रहे कि नहीं, ये सारा कुछ चलता है। मजा तब है कि जिसके पीछे वो लगाते हैं, जिस जात की तरफ वो गामजन करते उस जात की तरफ आओ। वो कौन सी है? बच्चे आपको कुरान मिले, कुरान जिससे मिलाता है उससे मिलना है। नमाज असल नहीं है, नमाज जिससे मिलाती है वो असल है। कुरान और सुन्नत की तालीम भी मंजिल नहीं है, ये मशअले राह है, मंजिल नहीं है। कुरान और सुन्नत भी मंजिल नहीं है, कुरान और सुन्नत मशअले राह है, मंजिल फिर वही है। फमन ज़ुहज़िया अनिन नार वउदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। तो उलूम शरिया की मुआशरती तत्बीक और तफ़हीम, बात समझ, ये तफ़हीम अब थोड़ी थोड़ी चंद मिसालों से मैं आपको दे, बाकी तो जिस वक्त हम पढ़ेंगे हम हर चीज़ ही इसी तरह पढ़ते जाएंगे। फिर उसके बाद है ये तफ़हीम की आगे तत्बीक है समाज में। क्या आपने इस लेवल का समझा हुआ है कुरान और सुन्नत को कि कायनात की हर जुज़ी के मसले की आप क्या कर सकें, उसके ऊपर तत्बीक कर सकें। मेडिकल का मामला हो, सियासत का मामला हो, और इसी तरह एजुकेशन का मामला हो, या इसी तरह रियासत के किसी भी इदारे से मुकन्ना का मसला हो, तो उस तरह की तफ़हीम, जब तफ़हीम ही आपकी होगी, जब बच्चे आपकी तफ़हीम बड़े लेवल की होगी, आपको बड़े लेवल के लोग बुलाएंगे। आपकी तफ़हीम जिस इदारे के लेवल की होगी उस इदारे के, वगरना फिर आवाज़ आंदी मौला फरमान देने, बात समझ रहे कि नहीं, आवाज़ आंदी मौला फरमान देने, वो बंदा आवाज़ ही नहीं आती बाद दफ़ा। वो एक आदमी का मैंने देखा, वो उसने ना मौजू लिखा हुआ फ्लैक्स छुपाए हुए, यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में, यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में। मैंने देखा यार ये पता नहीं क्या बयान करेगा। हालांकि बाद लोग तो बताते हैं कि वो गिरे ही हैं तो साथ उठा लिया गया, यानी उनको फरिश्तों ने क्या कर दिया, परों में उठा लिया। तो बात तो ऐसे आवाज़ आंदी ड्राम करके वो इस तरह ना। अब ये देखें ना, ये बंदे को हंसाना या बाकी चीज़ें ना, वो जिस तरह की तफ़हीम होगी फिर उसी तरह की बातें भी होगी। जब आपकी तफ़हीम बड़ी, आप अंदाज़ा करें, मैं हैरान था शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह रहमतन वासिया, आप अंदाज़ा करें उनके ऐसे मर्द होर और मर्द मुजाहिद और मर्द कलंदर कि उनके एक एक लफ्ज़ को अल्लाह ताला ने शरीयत के सही पहलू में लिखवाया है। किसी एक लफ्ज़ और पैरे के ऊपर आप कदगन नहीं लगा सकते कि अल्लाह के फजल करम से ये पैरा कुरान और सुन्नत से क्या है, हटा हुआ है, ये कुरान और सुन्नत के मुखालिफ है। आप उनकी किताबें देख लें अल्लाह के फजल करम से कैसे, तो ये भी अल्लाह की रहमत है कि लोग उनके लफ्ज़ों से अल्लाह की तरफ पहुँचते हैं। एक है कुरान और सुन्नत से पहुँचे। आगे एक दूसरा काम है, एक है उलूम शरिया की मुआशरती तत्बीक और दूसरा क्या उलूम असरिया की तज्ज़ियाती दीनी तज्ज़ियाती मुताला। मसलन आपके सामने दुनिया जहान के जो भी उलूम आ जाए, जो भी उलूम आ जाए, वो उलूम बच्चे आप तज्ज़ियाती दीनी तज्ज़ियाती मुताला करने की अहलियत और क्या हो, सलाहियत हो। ये मज़ा तब है जब आपको दोनों किस्म के उलूम का पता हो। और अगर बात तजर्बे की है तो बच्चे हम अस्दक़ुस्सादिकीन का मुशाहिदा आपके सामने और तजर्बा पेश कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैंने जन्नत भी देखी और मैंने, कैसी अजीब बात है कि जब तू मुशाहिदे का है तो सबसे बड़े के सबसे अच्छे अस्दक़ुस्सादिकीन के मुशाहिदे का तू इनकार कर रहा है, और तू सबसे बड़े अक़ज़बुल काज़िबीन के मुशाहिदे का क्या है, इकरार कर रहा है।
تو اس طریقے سے بات وہ نہیں چلتی. یعنی اصدق الصادقین اور اکذب الکاذبین، اس طرح کی تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ان لوگوں کو انہی لوگوں کی داستانوں میں پکڑنا ہے. آگے دیکھیں بچے، اسی کو آگے پڑھیں. ایک پڑھے بندہ. اصلی علوم کا تجزیاتی مطالعہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا، جس کا مقصد ایسے علماء کی تیاری ہے جو علم و استدلال اور حکمت و بصیرت. پہلے علم و استدلال کیا ہوتا ہے؟ دلیل و استدلال کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ ایک بات یاد رکھیں بچے، آپ کو سب کچھ آتا ہے. آپ بڑے اساتذہ کے پاس پڑھ کے آئے ہیں، آپ بڑے اساتذہ کے بعد نئی تبدیل لانا ہی بیوقوفی ہے. یہ بات شروع سے سمجھا دیں. الحکمہ میں یہ بات کوئی آدمی شیخ شفیق مدنی صاحب سے، جو آدمی شیخ عبدالعزیز الوی صاحب سے، جو آدمی حافظ مسعود عالم صاحب سے پڑھنے کے بعد وہ اس طرح ٹھوس علم پڑھنے کے بعد ہمارے سے وہ پڑھنا بنتا ہی نہیں. لیکن ہم آپ کو جو پہلے 2 جملوں میں رکھا نا، ہم نے وہ پڑھانا ہے، آپ نے وہ یاد کرنا ہے. حتیٰ کہ آپ نا میرے والا کوشش کریں کہ کاپی پینسل رکھ کے نا بچے وہ سارے شروع سے، وگرنہ آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی. آپ کی وہ پریکٹس کرانی، آپ کو علم نہیں سکھانا. علم تو آپ کو پہلے آتا ہے. علم کا استعمال اور علم کا جو چکر مکر ہے نا، جو علم چکر مکر دیتا ہے، وہ سمجھانا کہ علم کو کیسے آگے استعمال کیسے کرنا ہے. اس لیے ہمارا الحکمہ میں یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ بہت بڑے محدث پیدا کرنے. ہم نے اس کو معاشرے کے اس لیول پہ استعمال کروانا ہے کہ جس لیول پہ معاشرہ نعرے دعوے کر رہا ہے. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ اس طرح کے بندے ہمیں جو ملتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں. وگرنہ تو بڑے بڑے شیوخ کے اور باقیوں کے نام اس طرح ان کی تدریس وہ تو ساری چل ہوتا یہ کہ ایک دفعہ بخاری پڑھی، اب وہ سبل الصلاۃ دوبارہ پھر شروع ہو جاتی ہے، فتح الباری پھر دوبارہ شروع ہو جاتی ہے. تو وہ چیزیں تو آپ نے کرنی ہے، وہ چیزیں تو ہوں گی. ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے استدلال. اب بات سمجھ، ایک ہوتی دلیل اور ایک ہوتا ہے استدلال. یہ لفظ نا تھوڑا تھوڑا اپنے نا کل سے یا جیسے بھی اب نوٹ میں شام کو یا جیسے بھی یاد رہے تو بہت اچھا، نہیں تو اس کو یاد رکھ لینا، کیونکہ یہ جملے میڈیا سوشل میڈیا میں باقیوں میں آپ کے چلنے والے ہیں. بات سمجھے کر، ایک ہوتی دلیل اور ایک ہوتا ہے استدلال. دلیل اور استدلال، اسی کا نام علم اور اسی کا نام استدلال. ایک ہے خالق اور ایک ہے مخلوق. خالق مخلوق، بات سمجھ. ایک ہے روایت اور ایک ہے جدت. روایت اور کیا ہے؟ جدت. روایت اور جدت، تجدد. آگے انہی چیزوں کو جس وقت آپ لے کے چلیں گے نا تو آپ کو یہ سارا جو استدلال اور استدلال کے جو معاشرتی چیزیں ہیں نا، وہ ہم آپ کو اصول فقہ میں ایک ایک چیز کا اجرا بھی کروائیں گے اور سمجھائیں گے. دلیل کیا ہوتی ہے اور دلیل کو پکڑنا کیسے ہے، دلیل کو کیسے سمجھنا ہے، پھر دلیل سے استدلال کیسے کرنا ہے. یہاں یہ 2 جملے بولے گئے ہیں کہ اس کا مقصد علم و استدلال ہے. اس لیے یہاں یہ یاد رکھیں یہ خالی اشتہار نہیں ہے، یہ ہماری الحکمہ کی پوری فکر ہے. اس میں اندر جس کو یہ سمجھائے گا نا تو اسے کورس سمجھائے گا، یاد رکھنا. جسے یہ نہیں نہ سمجھائے گا وہ یہ خالی اشتہار نہیں ہے، یاد رکھے. اس کو پورا نظریاتی طور پہ باریکی کے طور پہ دیکھیں کہ یہ کیا ہے جو انہوں نے جملے لکھے ہوئے ہیں. پہلے 2 جملے وہ اگر آپ نے دیکھے ہوں گے تو آپ واقعتاً محسوس کریں گے ہم نے معاشرتی تطبیق اور علوم عصریہ کا تجزیاتی مطالعہ اس طرح کرنے کی ابھی اس طرح پریکٹس کی ہے یا نہیں کی. یہ تو آپ کے سامنے جملہ ہی بتاتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو اس طرح کر کے میں سمجھا رہا ہوں نا، اس کو ساتھ ساتھ اشارتاً سمجھتے جاؤ، لکھتے جاؤ. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ مثلا ایک ہوتا بچے یونیورسٹی کی لیول کی تعلیم سمجھو. اب کیا یونیورسٹی لیول کی تعلیم ہے؟ وہ یونیورسٹی میں 3 چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. آپ کے مدرسے میں اگر وہ تینوں آ جائے نا بچے، آپ یقین کریں دنیا کے کسی پلیٹ فارم میں اور دنیا کے کسی سٹیج اور کسی چینل پہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو سر آنکھوں جھکانی پڑے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کا سر جھکے. اہل حدیث تو ویسے ہی بڑا اللہ کے فضل و کرم سے فقیہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ان کا تو عامی بندہ مفتی من المفت ہے. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ بات سمجھ رہے. اور جو عالم ہے ایک ہوتا ہے، یہ دیکھنا پوری بات کلیہ.
पूरी दुनिया में जो उलूम पढ़ाए जाते हैं वो 3 तरह के हैं। कुलिया जिसे कहते हैं थ्योरी वगैरह जिसे कहते हैं कुलिया, उसूल। पहले कुलिया थ्योरी उसूल समझाए पढ़े जाते हैं। नंबर 1, कितने बच्चे ऐसे हैं कि कुलिया और उसूल और थ्योरी वगैरह वो ही नहीं समझ पाते। बात समझ रहे? हमारे यहाँ कुलिया क्या 6 किस्म के उसूल है जिसे कहते हैं उसूल सित्ता। उसूल क्या है? उसूल सित्ता में सबसे पहले क्या है? उसूल अकीदा या उसूल तफसीर। उसूल अकीदा, उसूल तफसीर। उसके बाद क्या है? उसूल हदीस। फिर उसके बाद उसूल फ़िक़्ह, फिर उसूल ग्रामर, फिर उसूल किरात या उसूल किरात को ऊपर ले जाओ। ये 6 किस्म के उसूल हैं जिसे उसूल सित्ता कहा जाता है। हमने अल हिकमा में उसूल अरबा का इजरा करवाना है क्योंकि अद्दावा वल इफ्ता है, तखस्सुस फिद दावा। और दावा से मुराद हमारी दावत तो तबलीग नहीं है। दावा से मुराद हमारा मसला ये है कि हम कुरान और सुन्नत के मैसेज को पूरी दुनिया में दावा करके बयानिया करके लाना चाहते हैं। जो शरीयत का दावा है, जो शरीयत का बयानिया, क्योंकि असल में ना हमने बड़े लफ्ज़ इसके ऊपर सोचे, बड़े लफ्ज़ उसके ऊपर सोचे, कौन कौन सा सोचे, लेकिन हम देख रहे थे कोई ऐसा लफ्ज़ ना हो कि जो अवाम में भी मारूफ हो जाए और जो उलमा में, दोनों ऐसा ही मिल जाए कोई। तो तखस्सुस दावा, दावा से मुराद हमारी दावत तबलीग नहीं है। कुरान का वो बयानिया जो दावा की शक्ल में खड़ा है उसको इस तरह पूरी दुनिया में ला के खड़ा किया जाए। और इफ्ता से मुराद हमारी, ये याद रखे बच्चे, हमने यहाँ से भी थोड़ा सा दाव लगाया। उसकी वजह यह है कि हम इफ्ता पे नहीं खड़ा करना चाहते थे अपने उलमा को। इफ्ता होता है और एक कदा होता है। एक होता है इफ्ता और एक क्या होता है? कदा होता है। इफ्ता का तल्लक फ़र्ज से होता है और कदा का तल्लक इज्तिमा और मुआशरे से होता है। लेकिन हुकूमती मसाइल की वजह से हमने कदा का लफ्ज़ जानबूझ के यहाँ इस्तेमाल नहीं किया कि वहाँ ऐसा हो। कदा का मतलब जज, सुप्रीम कोर्ट। हम सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में आपको पूरी चीज़ें समझाएंगे हैं। सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको आगे जाके पढ़ी जाने वाली है सारी। तो एक दावा वो कुलिया। इस कुलिये को जैसे होता है ना, कशिश सिकल का आपने कुलिया पढ़ा कि ज़मीन में कशिश है। अब इसकी दूसरे नंबर पे आ गई लैब, प्रैक्टिस। आपने उसूल ग्रामर पढ़ी, उसूल ग्रामर की आपने क्या की? प्रैक्टिस की। आपने उसूल फ़िक़्ह पढ़ी, उसूल फ़िक़्ह की आपने मुआशरे में क्या की? प्रैक्टिस की। उसूल हदीस पढ़ी, उसूल हदीस की आपने क्या की? हमारे कितने बच्चे ऐसे कि नाव सरफ के उसूलों के अलावा किसी उसूल पे प्रैक्टिस हुई है? कोई नहीं प्रैक्टिस होती ना, वो भी नाव सरफ की चंद एक बच्चों की होती है। हम पहले नंबर पे कई बार बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। बाद हुई तीसरा, आपकी प्रैक्टिस बहुत मजबूत है। तीसरे नंबर पे नतीजा। ये तीनों लिख लो इशारा करना, कुलिया, प्रैक्टिस, नतायज। आपने क्या करना? शरीयत की प्रैक्टिस, शरीयत का नतीजा। मसलन आपके 20 साल जिंदगी में, 8 साल दरस निज़ामी की जिंदगी में कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो बच्चे वाक़यातन आपकी वजह से मुसलमान हुए या आपकी वजह से अल्लाह के फजल व करम से वो कुरान और सुन्नत में आए हैं। आपने 10 बंदों को, कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो आप इदारे ऐसे हैं कि जो आपके कहने से इदारा बना है। आपके कहने से कोई छोटी सी तंजीम खड़ी हुई है। सोचो तो सही ना, आगे करने के लिए काम तो बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ, अल्लाह रहमत फरमा देता है। वगरना बच्चे आपका आलिम होने के साथ, मैं देखता हूँ इधर कितने नमाजी ऐसे हैं जो हमारे सब्जी लेने जाते हैं, सलीम वगैरह, ये सादिक वगैरह, मुमताज, ये उन लोगों को नमाज का कहते हैं। वो नमाज़ीन की वजह से कहने आए हैं, किसी आलिम की दावत पे नहीं आए। तो कितनी कमज़ोर बात है। ये जहाँ सब्जी लेने जाते हैं वहाँ अलिकमा से वो अलिकमा की तरफ ले जाते हैं, किसी को दम के बहाने, किसी को नमाज के बहाने, किसी को बिरयानी के बहाने।
किसी को कहते हैं दम करवा देते हैं। तो इन्होंने मुहिम बनाई हुई। तो अगर आप 8 साल दरस निज़ामी पढ़ें, वो एक तबलीगी बंदा था ना, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मेरे दोस्त बुजुर्गों भाइयों, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जो आदमी रात के वक्त ये अमल करता है अल्लाह ताला उसको ये अजर व सवाब देते हैं। तो एक आलिम था, वो बैठा हुआ, उसने कहा कि फिर उसने बयान किया, मेरे दोस्त बुजुर्गों भाइयों, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी रात के वक्त ये अमल करता है अल्लाह ताला उसको ये अजर व सवाब देते हैं। एक आलिम था, उसने कहा भी हजरत ये जो आप हदीस बयान कर रहे हैं उसमें रात का जिक्र नहीं है, दिन का जिक्र है, आप दिन को रात बना रहे हैं। कहने लगे कि हजरत कि जब आपका काम हम लोग करेंगे तो हमें इतना हक तो हासिल होना चाहिए कि हम दिन को रात के अंधेरे में बदल दें। मेरी बात समझ रहे कि जब आपका काम हम लोग करेंगे तो हमें इतना हक तो होना चाहिए कि हम दिन के उजाले को रात के अंधेरे में बदल दें। बच्चे, जब आपका काम और कोई करेगा ना तो फिर और अपनी मर्जी से करेगा। मेरे से दुनिया न्यूज़ में प्रोग्राम था, दुनिया न्यूज़ में ना वो प्रोग्राम था रोशनी, उसमें प्रोग्राम आया जुल्म। कहने लगा अस्सलाम वालेकुम, आप सब जुल्म किसे कहते हैं? मैंने कहा आपकी डिग्री क्या है, आपका डिपार्टमेंट क्या है? कहने लगा मेरा डिपार्टमेंट तो वो है मास कम्युनिकेशन वाला, तो वो तो है नहीं, यानी मीडिया तो आपने की डिग्री नहीं है। मैंने कहा जुल्म की सबसे बड़ी तारीफ यह है कि आप मेरे से वो सवाल कर रहे हैं जिसका आपको इल्म ही नहीं है। आप उस सीट पे बैठे हैं जिस सीट के आप अहल नहीं है। वदु शैफी गैरी माली, यानी मैंने तो आयत हदीसें पढ़नी है बच्चे, मैंने आयत हदीसें पढ़नी है, आपने सवाल करना, मैंने आयत हदीसें पढ़नी है, दूसरे ने आयत हदीसें पढ़नी है। आपको कैसे पता चलेगा कि आयत हदीस सही कौन सी पढ़ रहा है, गलत कौन सी पढ़ रहा है, सही तर्जमा कौन कर रहा है, गलत? या तो आप इस फील्ड को सीखो। लेकिन हुआ ये कि उसने बर्दाश्त किया, मुझे अगले प्रोग्राम में बुला लिया, कहना ये उधर ही छुट्टी। तो अच्छे तरीके से अब वो जुल्म की वैसे डेफिनेशन में लगे रहो, उस तरह नहीं समझानी। तो कुलिया, लैब और आगे क्या है? हाँ बोलो बोलो। हाँ क्यों, असल में ना पता है कि बच्चे, ये नहीं है कि आप उसको मुकम्मल प्रॉपर सीखें, आपको समझना जरूर चाहिए। या ये है कि आप यूं कर ले कि मेडिकल से मुतल्लिका मसाइल हैं, आप आज सवाल आया कल उसका सही प्रॉपर जवाब देने की अहलियत और सलाहियत रखते हो, फौरी ना ही सही। लेकिन अगर आप मुआशरती तत्बीक नहीं ना करते, मसलन कुरान करीम की आयत आज ही पढ़ी गई सुबह फजर में, इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहार, इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्द। एक स्पेशलाइजेशन का जो फितना ना बच्चे के सिर्फ एक डिपार्टमेंट, आप अंदाजा करें इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्द का मतलब क्या है कि सातों आसमान और सातों जमीनों की तख्लीक में तदब्बुर वश्शम्सी वदुहाहा वल क़मरि इज़ा तला, इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार। अल-लैल नहार का जो स्पेस का जो सिस्टम चलता है, आगे का वख्तिलाफिल लैलि वन नहार वल फुल्कि लती तजरी फिल बहर। अब समंदरों का पूरा आपको इल्म हो, बात समझ रहे कि नहीं? वल फुल्कि लती तजरी फिल बहर बिमा यनफ़उन नास वमा अनज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन। आगे इल्म फल्कियात, इल्म अर्जियात और इसी तरह ज़ालोजी और एग्रीकल्चर, ये सारे लफ्ज़ आपको बाकायदा समझ होने चाहिए कि ये लोग कहाँ से चक्कर देते हैं। हाँ जो होनी चाहिए। हाँ 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 नहीं, लामा साहब ने उसका अच्छा किया, उसकी वजह यह है लेकिन लामा साहब को पता है। हाँ नहीं मेरे हमारे साथ कितना असल में ना पता है कि हमारे इधर तमाम स्टाफ एमफिल है। मेरी अब खुद डॉक्टरेट की वाली सूरत, यानी पीएचडी
और PhD से ऊपर तो कोई नहीं है, लेकिन ये है कि आए नहीं, वो कुछ नहीं है, वो बच्चे तजर्बा है। वो डॉक्टरेट जो डिग्री है ना, वो कोई डिग्री नहीं है, वो डिग्री नहीं, वो आपके तजर्बात और बाकी चीज़ें हैं। स्पेशलाइजेशन में आप जितना मर्जी आगे बढ़ जाए, वो डिग्री नहीं होती। डिग्री वही होती है जो बच्चे मारूफ होती है, जो मारूफ होती है डिग्री, वो बाकी तो सारे एक दूसरे को आगे पीछे करने। लेकिन एक बात समझो कि असल मसला ये नहीं है कि आपको, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप दोनों किस्म के निज़ाम समझते जाओ, दोनों को मिला के लेके जा रहा हूँ ना, कभी इधर से मिसाल ले रहा हूँ और कभी उधर से मिसाल ले रहा हूँ, इधर से मदरसों की मिसाल ले रहा हूँ, उधर से यूनिवर्सिटियों की मिसाल ले रहा हूँ, इधर से दीनी मिसाल ले रहा हूँ, उधर से मेडिकल की और दूसरी मिसाल ले रहा हूँ। तो आपको सारी दोनों मिसालें आपको मिला के आपको, यही वो होता है दीन का तज्जियाती मुताला ना। दीन का तज्जियाती मुताला आपको पता चले, मसलन इधर से आप अल्लाह के रसूल का मुशाहिदा बताया और उधर से अकदबुल कादिबीन का मुशाहिदा बताया कि अगर तूने मुशाहिदे पे आना है तो हमारा भी एक मुशाहिदा है, वो अपने मुशाहिदे को सोने का बेचता है और हमारे मुशाहिदे को पीतल का। तेरा कुत्ता टोमी और मेरा कुत्ता कुत्ता, ये नहीं बात चलेगी। तो इसी तरह कई एक प्रोग्राम है उसमें ये बातें चलती, यानी ये कहें तो अब आप अंदाजा करें। मेरे पास एक साहब आ गया तो मैंने उन्हें कहा देखे तिल का इदन किस्मतुन, ये बड्डी और बोडी तकसीम जो है, हाँ ये तकसीम तो आपने लगाई है ना। तो तालीम की दुनिया का ना, हम भी रस्मी तालीम पढ़ते हैं, हमारे बच्चे भी तालीम पढ़ते हैं, हम भी किताब पढ़ते हैं, आप भी किताब पढ़ते हैं, हम भी कलम से लिखते हैं, आप भी कलम से लिखते हैं। लेकिन याद रख, मेरा बच्चा फजर से उठता है अल्लाह के फजल व करम से, और दिन के किनारे से उठता है और रात के किनारे तक जाके पढ़ता है। बात समझ रहे? यानी फजर से लेके रात 12 बजे तक, 11 बजे तक पढ़े। हमारा बच्चा फजर से रात 12 बजे तक पढ़े और वो हो गया दरवेश। तेरा बच्चा 9 बजे आंखें मलता हुआ, मुंह चेहरे पे शैतान ने पेशाब किया हुआ है, वो उठे और बगैर किताब और कलम के यूनिवर्सिटी में जाए और 12, 1, 2 बजे वापस आ जाए और वो हो गया डिग्री होल्डर है। मैंने कहा बच्चे इस तरह की तकसीम उधर ही चलेगी जिधर तुम चला सकते हो। हमारे यहाँ यानी तेरे बच्चे को सिस्टम ने किताब से बेगाना कर दिया है, तेरे बच्चे को सिस्टम और निज़ाम ने कलम से बेगाना कर दिया। तेरा बच्चा तो अब किताब कलम भी नहीं लेके जाता, वो बस कपड़े कुपड़े पहन के मुंह मत्था जो ना वो बना के और इसी तरह तपड़ी छपड़ी फेर के चला जाता है, मुंह पे तपड़ी छपड़ी फेर के। फिर लगाना तो पोछा सही लगाओ भाई, बात समझ रहे कि नहीं? जब तकदीर आपके हाथ में है तो अच्छी लिखो, बात समझ रहे, फिर बना के लिखो ना। तो फिर जिस तरह हुआ, मैंने कहा इतनी ये बड्डी और बोडी तकसीम ना इस तरह उन लोगों के यहाँ तुम्हारी चलेगी जो लोग तुम्हारी इस असलियत और हकीकत को समझते नहीं है। अल्लाह के फजल करम से हमारा बच्चा लफ्ज़ों को भी हल करता है, उसकी दलालात को भी हल करता है, उसके दीगर उसलूब को भी हल करता है। एक लफ्ज़ के 20 शक्लें हैं जो हमारा बच्चा हल करता है, और तुम्हारे बच्चे को पता ही नहीं है टेक्स्ट है क्या। अब लेक्चर की दुनिया आ गई, ज़बानी कलामी, यानी कि मैं कुल 6 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ बच्चे। लेकिन हुआ ये कि जिस वक्त शुरू में पहला सेशन में होता था ना, तो वो लड़कियां लड़के 100 होते हैं, आपको पता है, वो देखना तो हंस पढ़ना कि मौलवी आ गए। लेकिन ये कि एक वक्त ये भी आता था कि अल्लाह के फजल करम से बच्चे मेरा लेक्चर, हमारा लेक्चर नहीं छोड़ते थे, बाकी जिसका कहते हैं सर हमें अच्छा नॉलेज मिलता है। मैंने हम भी उसी तरह पढ़ाते थे। आखिरी बात करके बात ख़त्म करता हूँ। मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम इंसानों और बंदों और बंदियों को, अल्लाह के बंदों और बंदियों को सलाम हो, लेकिन उनको कोई सलाम नहीं है जो बंदर की बेटी बंदर का बेटा है और बंदरी की बेटी है। यानी ये जो डार्विन वाला नजरिया है ना, बंदर की औलाद, इंसान बंदर से और बंदर से। मैंने कहा भी देखे, जो बंदा है वो बंदे से बंदा है, और जो समझता है, जिसका नजरिया है कि वो बंदर से बंदा है, तो वो बांदरी है और वो बांदर है। तो लिहाजा हम अपना नस्बनामा आदम अलैहिस्सलाम तक लेके जाते हैं। आप में से कोई सियाना बंदर है तो वो अपना बंदर
बांदर और बांदरी का नस्बनामा लेके जाए कि तू अफ्रीकी बंदर है या अमरीकी बंदर है। बात समझ रहे कि नहीं? क्यों हम आपको मानते हैं भाई बंदर से इंसान है, मानते हैं, लेकिन तूने नस्बनामा साबित करना है कि तू अफ्रीकी बंदर है या तू शहरी है या जंगली है। उधर जाके सब कमोई। और मैंने कहा भी हम अदब से आपको बुलाया करेंगे कि बांदर का बेटा बांदर, बांदर इब्रे बांदर। आप यकीन करें उसके बाद ना किसी ने ये नजरिया ने, मैंने टीवी चैनल सुनो में कहा, मैंने कहा अल्लाह के फजल करम से आप नजरिया इर्तिका ये जो डार्विन वाला नजरिया ये पढ़ाते हैं, आप सिर्फ हमारे उलमा को 1 साल नजरिया तख्लीक बयान करने की वो पूरा निज़ाम दे दें, आपके सारे नज़रियात को उलमाए कराम अल्लाह के फजल करम से नज़रिया तख्लीक तुम्हारे दुनिया के सारे नज़रियात को खा जाएगा। कि नज़रिया तख्लीक का मतलब क्या? दुनिया खलक है, दुनिया धमाका नहीं है। इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक, ये तुम्हारे पास इसका अभी तक जवाब नहीं। हमारी पहली वही ने पहला जवाब ये दिया कि दुनिया खलक है, दुनिया धमाका नहीं है। उधर आके चुप हो गया। मैंने कभी देख बात आगे देखते रहेंगे इंशाल्लाह। चले जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम।